So having said that, the public policy as an stream has not got a very structured uh, knowledge infrastructure, but basic framework is same. Like people still talk about the categorization of public policy or phases of public policy, but it's all uh, there to align you for the work that everybody is doing. So, like management, here you have a lot of scope to have your creative bent or like situational variations to move beyond a regular way of doing it. Okay. So, the question that I've asked you that how much we need to know about public policy before MPP entrances. So, here I'll tell you that the exams are expecting mainly that you must know that what kind of governance system we have here. Second, they would also like to know that whether you have knowledge of different policy issues. And by policy issues, uh, we'll be focusing more on where we have not been come up with the right policy yet. Although all those policy for which we have a very structured policy, like we do have a public distribution system, or we right now like we have a national education policy or national health policy, new health policy we call it, and many such policies like Manrega. So they are going in a broader structure, uh, considering that government is considering that they are able to cater the need of that particular issue or particular domain. But there are many such issues for which we haven't reached to a consensus among the different stakeholders, like a right to privacy, or you can call Lokpal bill, or something about freedom of speech. So all these issues are still in consideration, and the different stakeholders have their different opinion, and we are not able to structured it yet for a policy, comprehensive policy from government side. So we need to discuss that also. Also for these all those policies which are already in running or already being implemented or have been implemented, there are many uh, micro level issues which kept on coming, uh, for which we need to debate or talk or what we can do, we can debate, but government can extract the key points from those debates and bring or convert them into policy interventions features. So we should know about that. We should also know about little about policy phases, that how it is being made and implemented, and if we'll call it like general awareness related to policy, general awareness related to policies. So now we all know that this year we also have people who are. Acha, no, before going to that, if you'll ask me the same question just by changing this last three words or last two words, rather than we call it MPP entrances, then we just call it MPP. So before you go to the program, if you want to be good at that program, if you want to perform better in that program on those 2 years, and if you want to make better career ahead, so you need to know little more about these. Like you should be knowing the different challenges that policymakers are facing. Okay, what are the issues in debate, different challenges which policymakers are facing uh, in making a policy and implementing a policies also, making and implementing. And you should also know
the trade-off that every policies which are there, it could be good for some, but it also may come up with an adverse effect for few other people. Then we have a resource allocation challenges, resource allocation challenges, because we all know that even as a big nation, we do have limited resources. As resources in terms of money, in terms of manpower, in terms of natural resources. We don't have everything to cater the need of all section of society. So we have to make a very judicious allocation of resources, and probably there comes other challenges, that what is the current government thinking or government opinion is. So you can just find it out. Judicious. I don't think I'm writing right spelling here, but okay. So these issues, if you know, it will also help you in doing good in your program. And like if you are appearing for interviews, these may be the discussion of point of discussion in your interviews. Few other points, like I was talking about trade-off. So we also need to analyze the policies on the basis of equality versus equity and other different conflicting parameters uh, for policymakers. So all these things you should be knowing before you go to Masters in Public Policy program. Now you all know that we also have people for people who are trying to go for research in public policy without any prior knowledge of subject, not prior not knowledge, but without any prior training of this subject. Like if you are an MBA or if you are an BTech graduate and if you want to go for research in public policy domain, so what are the things that you need to know? Of course, these are the things that you should know. Apart from this, you know, uh, I think this is the word. Apart from this, you should also know that what are the research need, why or in what area we are doing research. Like we should also trace the evolution of policy researches, evolution of policy-based researches. So probably you will have to go back to the subjects like political science, economics, development economics, and other subjects, sociology also, in order to trace the different aspect of public policy. But mm, from those domains or from those subjects, if you'll come in last 10 year or 20 year, you will see that people have very much distinguished the public policy from those different subjects. So those people can also do research on these areas, but public policies based research is having a very different mindsets. It's more of management mindsets. So that's why all these colleges like IIMs or business schools like ISB and MDI, they are having this area of research. So although they are not providing any course in public policy, they are just having one or two paper of public policy in your MBA program, but still they have an area of research in public policy, because uh, these days businesses cannot be, in fact, not in these days, in any era of the history, and in current situation, it is more related. So businesses cannot be taken away from the government's intentions. So before 1991, government used to do business, but these days government is not doing business, but it intervene the market. So the government role is the intervention, or how do they do intervention? By different trade laws, uh, by different trade laws or regulatory bodies. So regulatory bodies, uh,
and any and different other mechanism or institution they may create to intervene the market or corporates. So businesses have got or also businesses have also got influenced or impacted by social structure or political structure of the nation, and of course the international affairs or international partnership among two countries. So like for a business, let's say a particular country A is very great market, but the current political relationship between the country A and the India is not very good. So this will have a bad impact on that business. So a lot of things are still there, which impacts the businesses. So if you want to go for public policy PhD program, public policy PhD program, so you need to know the management aspects of public policy, like how policy system work, and if I'll say how policy system works, so you need to know how a system works. So the system approach, the process approach of policy, you should also be knowing this. And of course every knowledge that you will try to get here, it should be backed by literature review. So anything that we speak in our class, or you listen to those things on WhatsApp or Instagram or any such platform, you will not rely on it. You will go for the original data or original paper where that particular subject has been mentioned or discussed. So these are the things that you have to do extra than what we were trying to, or what I was trying to tell you, to read for MPP entrances. So the thing that system approach, it's a very good thing to know for everyone. So we will keep these two things here also. So I think now you all know that what you need to study or what you need to know uh, in order to prepare to for any exam. यहाँ तक सबको okay? Let me pause recording uh, for some time. Let's discuss things. So like you told that everyone may have different areas of interest. Like people, some of you may be interested in climate based policies, or few may get interested in livelihood problems or livelihood issues. Some of you may want to go for economic development, or economic development, or there are a lot of other subjects which are very much different from each other. Uh, Health based policies, or education, or governance, local governance based improvement, or governance based policies also, local and regional governance. Some of you may later can go to cultural or other domain. So up now, we will say that just by knowing policy, you will not be able to work in these areas. So it's very much true that when you go to college, all your work, all your learning will be based on all your learning will be around public policy as an core instrument, as an subject, as an instrument or methodology, and also you'll have to pursue your domain where you need to get expertise. So domain knowledge is also very important, because if you don't know the different parameters, if you don't know the problems in hand, or if you don't know the reasoning of all those variables, or even the variables which is active in these areas, what are the goals that we have to achieve, what are the broader goals, what are the narrow down goals. So if you are not knowing those, you'll not be able to even use the policy knowledge that you are gaining. So domain expertise or subject matter expertise is also important. So
in that case, when you'll go ahead and after your MPP program, and if you'll apply or for some job, so the job, the interviewer may ask you that in what area you would like to work. So you may tell that I want to work for urban development, urban area development, yeah, urban sustainability. You may ask, tell that you want to work for the economic development of a state or region. So different areas uh, are there with which you can develop your expertise and tell them that I want to work here. So they may ask some other detail or some other uh, area related knowledge that whether you do have or not. So these are the tools that you need to know, and these are the domain where also you need to have knowledge in order to mix these two for work. ठीक है सयांतन? तो अभी क्या पढ़ना है, इट्स अ वेरी मच वो सब्जेक्टिव थिंग कि क्या पढ़ना है, पढ़ना सब चीज ही है। तो हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, आज की जो मेरी क्लास है, इट्स वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स आउटलाइन बेस्ड लेक्चर होगा ये, in which we will cover everything that is going to come in our discussions ahead. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट दैट व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, the first question that we'll be dealing here, what is public policy. तो तुम देख रहे होगे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डोमेन or anything. I am just dealing with the subject of public policy, that how we have been seeing it or visualizing it as a different subject, because earlier it was just part of your political science subject or public administration subject. Now, since it has got that much of importance, that colleges and universities have come up with a very segregated or standalone course for public policy. So, what is public policy would be the first question that we should be dealing. तो मुझे कोई बताओ तुम लोगों में से, पहले भी हम बात कर चुके हैं, बट स्टिल लेट मी आस्क यू अगेन. कोई बताओ, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी. The policies that have been made by government uh, for the welfare of general people, citizens, or citizens of the nation. हम्म, तो तुमने वो बिल्कुल कॉमन सेंस से फिर बताया. तुम तो लास्ट डिस्कशन में थी, यू आर टेलिंग अगेन द सेम डेफिनेशन जो तुमने लास्ट क्लास में बोला था. लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन फिर आपने बताया था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट जो हाँ, तो पॉलिसी बनाती चलो ठीक है, विल टेक दिस वर्ड कि पब्लिक का मतलब हो गया गवर्नमेंट. ऑल्दो जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो इट्स नॉट जस्ट योर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एंड इट्स डेलीगेटरीज, डेलीगेट्स. अब डेलीगेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव भी होंगे, और प्राइवेट पार्टीज भी, जो वो नॉट प्राइवेट उसको बोलेंगे, पीपीपी टाइप से ही हो गया, बट प्राइवेट बॉडीज which has been given the rights to make policy. ठीक है, make and implement those policies. तो दिल्ली जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज जाते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसी को हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं क्या, बट ऐसा नहीं है. जैसे मान लो कि अगर कोई बीडीओ अपने एरिया में, अपने ब्लॉक में कोई पॉलिसी लेकर आता है तो वो भी एक पब्लिक पॉलिसी ही कहलाएगा, बिकॉज इट ऑल दीज पॉलिसीज आर अंडर प्रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट, है ना. मतलब दे विल फॉलो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, norms and constitutional compliances. जब हम constitutional बोलेंगे, that also mean legal compliances, and all these policies must be adopted by
द गवर्नमेंट, है ना, और गवर्नमेंट के डेफिनेशन के साथ। तो इसलिए ये पब्लिक वर्ड दिया हुआ है। एंड व्हाट इज पॉलिसी? क्योंकि आप ऐसा नहीं डेफिनेशन दे सकते ना कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, किसी पर्टिकुलर टर्म के डेफिनेशन देने के लिए यू कैन नॉट यूज द सेम टर्म। अब ये बोलोगे कि फैन क्या है, तो हम बोले फैन पंखा है, तो इट विल नॉट बी राइट डिसीजन बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम वर्ड मे बी इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो वो डिफिनेशन नहीं हो सकता। तो बताओ मुझे कि पॉलिसी क्या है। रुको, अब मैं पूछता हूँ, वो बताएगा। यासना तुम बताओ, व्हाट मे बी द पॉलिसी? इट्स Um, नॉट Government's response to a certain problem. Hello? हाँ, मैं समझ गया। गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। इसमें दो तीन चीजें हैं जो थोड़ी लैग कर रही हैं इस Excuse पर्टिकुलर। me, sir. हाँ, Sir, just to add on to Yashna's point, मतलब गवर्नमेंट रेस्पॉन्स वो तो ठीक है, बट देन दी वो रेस्पॉन्स मतलब स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो होता है टू इम्प्लीमेंट दी to implement the government decisions to solve the problems that largely affects the society. तो वो तुमने यहाँ रिस्पॉन्स वर्ड को तुम थोड़ा एलोबरेट करना चाहते हो, एंड यू वांट टू से स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। Framework, हाँ। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, है ना? ठीक है। और इसमें इधर कुछ चेंज करना चाहते हो? वही सर, to specific problems that affects the society, society at large, by and large. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सोसाइटी को ही हाँ इम्पैक्ट करे और नेशन हाँ, को भी। जो भी हाँ, क्योंकि जनरल। कई बार हम पब्लिक पॉलिसी ना, हम लोग का दिमाग नैरो डाउन कर देता है कि लोग। इट्स नॉट अबाउट जी लोग ओनली, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट पीपल ओनली, है ना। सोसाइटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलग प्रॉब्लम होते हैं। इकोनॉमी को हमें एक लिविंग बॉडी की तरह ट्रीट करना पड़ता है, but ठीक then है। economy is also considered a part of society ना सर, because ऐसे automatically तो तुम देखो, तो तुम पूरी दुनिया पे अधिकार जमा के बैठ जाओ कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना। अब जैसे मान लो कि अंडमान निकोबार के जो आदिवासी हैं, है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस, बट हाँ गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज फॉर देम आल्सो। हाँ ओके Probably there will not be any intersection of those policy outcome and our well-being, जी ओके है ना। यस तो मेरा पॉइंट ये है कि हम बहुत रिमोटली कनेक्ट करना चाहें तो वी कैन कनेक्ट एनीथिंग विथ अस, है ना। बट ऐसा नहीं है कि जो हमारा फोकस एरिया है इट्स जस्ट पीपल ऑफ ये द नेशन। हम एनिमल, अब हम बोलते हैं कि बाघ के लिए पॉलिसी बनाती है, तो तुम बोलोगे सर वो तो इको चेन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ऑफ कोर्स। बट करेंटली जैसे अभी कई बार कुत्तों की बात आई, ठीक है, जो स्ट्रीट डॉग्स थे, ठीक है, और स्ट्रीट डॉग्स के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक पॉलिसी बनाई कि हम उनको सबको एक शेल्टर होम में ले जाके रखेंगे। बट पीपल मेड ह्यू एंड क्राई अबाउट इट दैट। तो अब उसको फिर लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने उसको वो किया, तो पीपल फाउट फॉर डॉग्स। बट ऐसा नहीं है कि डॉग्स आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ, सो स्ट्रीट डॉग स्पेशली। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो हमें अपना एक दिमाग ब्रॉड बना के रहना पड़ेगा कि सर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, जस्ट एक सेकंड से आंसर, एंड नॉट ओनली प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम वर्ड से भी थोड़ा मुझे दिक्कत है, नॉट दिक्कत है, इट्स नैरो डाउन द स्कोप ऑफ पॉलिसी। थोड़ा सा हम इस पे ऐड करते से आंसर, देन आई एम कमिंग टू यू। फॉरेन इशूज है, मतलब फॉरेन इशूज। और उसके बाद क्या है कि जब इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम, इट्स अबाउट एनी थिंग, government can make policies without any problem also, like we can have जैसे स्पेस के लिए कोई पॉलिसी बना रही, तो वो कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, वी सर कैन हम जस्ट। अभी हाँ, हम रेगुलेट समथिंग कह सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं। तो
नहीं, रेगुलेशन इज अ मैकेनिज्म और इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अभी हम जो ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बोल रहे थे, Situation, क्या क्या फिर से बताओ। the situation. हाँ, सिचुएशन भी, तो सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो, बट मेरा यहाँ था कि जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम की तरह हो कुछ। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम लेट्स से मतलब इंडिया को मतलब गवर्नमेंट, लेट मी गिव एन एग्जांपल, गवर्नमेंट चाहती है आई थिंक क्या एग्जांपल देना चाहिए, वेयर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग नॉट टू सॉल्व अ डायरेक्ट प्रॉब्लम बट टू गेट एडवांटेज ऑफ इट। जैसे मान लो कि हम टूरिज्म के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये सोचती है कि इससे टूरिज्म बूस्ट होगा। तो गवर्नमेंट एक्चुअली नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बट ट्राइंग टू टैप ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जब मेरी यहाँ से समझ रहे हो ना, आई एम नॉट कटिंग योर पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द अदर डायमेंशंस टू इट, कि सब चीज को प्रॉब्लम की तरह देखना जरूरी नहीं है ना। Yeah, yeah, हाँ, तो अब सियांतन, अंशिता Sir, कुछ बोल रहे थे, हाँ। sir, so we can say it like to achieve a certain goal. हाँ, अब नहीं, देखो अब क्या, अब यहाँ पे बात आता है ना कि जब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो गोल पहले हम बाद में बात करते हैं। पहले तो हमें होता है कि एक एरिया डिसाइड करना है कि हमें यहाँ रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। मतलब कोई भी वो प्रॉब्लम हो या कोई पर्टिकुलर, जैसे गवर्नमेंट में बी वेरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव एनफ टू सी द अपकमिंग प्रॉब्लम और सिचुएशन, और किसी भी जैसे प्रोएक्टिव सेंस में भी गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो जब अब एरिया डिसाइड हो जाता है ना, देन दे ट्राई टू क्रिएट गोल, तो यहाँ पे तो जब रिस्पॉन्स का ये पार्ट आ गया ना कि हाँ, कि पॉलिसी का रिस्पॉन्स है, तो पहले वो गोल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की बात की या तुमने ये क्रिएट गोल की बात कर रहे हो, these two are basically explaining the word response here, समझ रहे हो। तो वो रिस्पॉन्स वर्ड को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। Swastika is saying, can we call it a government structure for resource of an economy, CPR, human animals? देखो स्वस्तिका, I'm not trying to bring everything in one sentence. और गवर्नमेंट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिसी इज अ डिफरेंट थिंग। अब इसमें क्या होता है कि दो चीज है। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कई वेबसाइट वगैरह पे देखोगे ना, तो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री and it is called Center for Good Governance or Ministries of Good Governance. That means that ministry is taking care of governance structure of different other ministries so that they can come up with good result. तो जब हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच पॉलिसी रन्स। तो पॉलिसी को गवर्नेंस स्ट्रक्चर से हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। आई एम कमिंग टू दैट, थोड़ी देर बाद उस पे आते हैं। सयांतन, तुम क्या कह रहे थे? नहीं सर, तो नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। वो डॉग वाले में आपने बोला ना कि वो पब्लिक को कुछ नहीं हाँ, करता, तो उस बट तरह को मे थोड़ा बी रैबिस के केस में वो एक हेल्प। हाँ, हाँ हाँ। कोई नहीं, उस पर हम लोग बाद में डिबेट कर लेंगे, क्योंकि वही बताया ना कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे मान लो कि पीडीएस की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं, ठीक है, कि व्हाई पीडीएस सिस्टम इज नॉट वर्किंग गुड इन आवर कंट्री। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पॉलिसी गवर्नमेंट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर का भी दिक्कत है, पॉलिसी के भी फ्रेमवर्क का दिक्कत है। एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्टिव्स दैट पॉलिसी हैज वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मल्टीपल डायमेंशंस हैं डिस्कशन के। तो इस वजह से भी पब्लिक पॉलिसी एज एन स्ट्रीम इज वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू। मतलब दिक्कत क्या होता है कि जैसे मान लो, आई एम जस्ट गोइंग लिटिल अवे फ्रॉम द लेक्चर, कि जब आप एमबीए करते हो ना, तो एमबीए इज स्टिल अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आप अगर किसी अच्छे कॉलेज से, आई मीन नॉट फ्रॉम अ कॉलेज विच एक्चुअली डजंट नो हाउ टू टीच एमबीए,
बट किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप पास आउट हो और आप बोलते हो कि मैंने मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन की है या मार्केटिंग पढ़ा है उस कॉलेज से, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सर्टेन नॉलेज फ्रॉम यू कि आपको ये चीजें तो पता होंगी, आपको नीड डिमांड ये सब चीजों की पता होगी। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, एमबीए में ये भी स्कोप होता है कि आप बिना कुछ जाने भी एग्जाम पास कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है अलग, बट द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड। if you are going through it, you will be able to know a certain structured knowledge or working way to work for business. बट पब्लिक पॉलिसी के साथ ये है कि इट द स्कोप एंड द वर्किंग मॉडल ऑफ पॉलिसी इज वेरी ब्रॉड। क्योंकि जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, तो उसके जो टोटल पोटेंशियल कस्टमर होंगे ना पूरे देश में, वो 4 करोड़ भी शायद ना हो, है ना। 4 करोड़ बहुत कम बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत सारे कंपनी के टोटल पोटेंशियल कस्टमर इन इंटायर कंट्री में भी 10 लाख। अब वो 10 लाख के लिए उनको पॉलिसी बनानी है, प्रॉब्ली उसमें से कन्वर्ट होके 5,000 कस्टमर बने एक साल में, दैट्स टू अ बिग थिंग फॉर दैट कंपनी। तो आपको सोचो कितने लिमिटेड लोगों के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है या सेल्स स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है या प्रोडक्ट डिलीवरी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, तो कितना छोटा काम है यहाँ पे। बट तुम पॉलिसी की बात देखो तो पॉलिसी में और फॉर इवन फॉर द कंपनी द रिसोर्स इज unlimited, not unlimited, but they have good enough resource for marketing projects. They will earn profit from it and they can reinvest in itself. बट गवर्नमेंट के पास क्या है कि वो एक जगह पैसा निकाल के दूसरी जगह लगाना है। एंड इवन जैसे इस केस में कस्टमर्स आर अवेयर, बट हमारी लोग जिनके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं दे माइट नॉट बी वेरी अवेयर टुवर्ड्स इट। कंपनी के साथ क्या है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के केस में क्या है कि वी हैव अ ब्यूरोक्रेसी, वी कैंट गो बियॉन्ड इट। तो फॉर एवरी पॉलिसी वी कैन नॉट हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट जो इफेक्टिव हो। तो कितनी प्रॉब्लम है पॉलिसी के साथ, यू विल नो हियर। और एमबीए के साथ स्टिल यू हैव nothing that typical to be achieved in terms of decision making or in terms of resource utilization or in terms of finding unknown variables, है ना। all those variables are known। एमबीए के लिए इतना सारा रिसर्च हो रखा है, दे यूज मैनेजमेंट। एमपीपी में वी स्टिल डोंट ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट येट। हम ब्यूरोक्रेट्स के जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड वर्किंग मेथोडोलॉजीज हैं उसी को लेकर काम करते आ रहे हैं। तो इसीलिए एमपीपी जो है यहाँ पे जाकर अच्छा काम करना रिक्वायर्स ग्रेटर क्या बोलते हैं उसको, कॉलिंग फॉर योर कैपेबिलिटीज। और इसीलिए मैं कई बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि जैसे आप अगर आज एमबीए करते हो और आज अगर एमपीपी करते हो, मतलब दो ग्रेजुएट्स हैं विच डिफरेंट, तो एमबीए पीपल मे गेट अ वेरी गुड जॉब एट फर्स्ट placement, or maybe they build a career very like a stable way. But MPP graduates, if they literally do or justice to their studies and work, तो पहली प्लेसमेंट भले ही अच्छी ना मिले बट दे कैन राइज इन देयर करियर इन वेल, मतलब मे बी इन फास्टर वे देन एन एमबीए ग्रेजुएट्स। तो पॉइंट ये है मेरा कि पॉलिसी रिक्वायर्स more managerial skills, more leadership skills, more economic analysis or decision making skills than an MBA। तो जब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इतना सारा वेरिएशंस हैं, बिकॉज for a company, anything that we do to solve the problem which is well established कि बेचना है, लोगों से सही से काम कराना है, लोगों को अवेयर कराना है, बड़े ऐसे रेगुलर से गोल हैं विच एवरीबडी नोज। अभी देखो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी अभी बात करने जाए तो वी कैन टॉक एटलीस्ट 2 hours फॉर इट। एंड प्रॉब्ली आगे वाले जो फेजेस में हम बात करेंगे, जब एजेंडा सेटिंग की बात करेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स विल कम। और सबसे बड़ी बात है कि for a policy maker, who will tell what problem to be discussed or what problem to be tackled right now? तो उस पे भी कितनी बहस होती है, because not all the things are in our control, unlike an corporate structure where most of the things are in control rather than market dynamics। But here everything is like they have got independent part of it which are not under our control। So public policy can be maybe very typical or complex thing to learn and work in it। तो अगर आप में से जो भी लोग पब्लिक पॉलिसी करने जा रहे हो और आप अपने आप को कहीं से भी अंडरमाइन करते हो
मैनेजमेंट ग्रेजुएट से, तो ये एक गलत अप्रोच होगा आपको, तो शायद उसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पे भी पड़ेगा। तो यू शुड बी फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू work for a more challenging environment और difficult to produce result, ऐसे वाले सिचुएशन में आप काम करने जा रहे हो। तो अच्छा, तो हम यहाँ आते हैं यासना वाले डेफिनेशन पे कि गवर्नमेंट रिप्रोच। तो गवर्नमेंट की बात तो हमने कर ही ली कि ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट की बॉडीज भी होगी। अब रिस्पांस की बात हम बाद में इसलिए किए क्योंकि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। सर्टेन प्रॉब्लम में मैंने ये बताया कि इट मे नॉट बी द प्रॉब्लम, it may be any issues which may not look like a problem, but government need to respond to it। ठीक है, तो उसको हमने कुछ एक्सप्लोर किया। नाउ रिस्पांस पे बात करें तो विशाल केम अप विद की स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, बट द थिंग इज द गवर्नमेंट कम अप विथ एनीथिंग, जैसे लॉ लेकर कोई आया या गवर्नमेंट में ब्रिंग रेगुलेटरी फॉर समथिंग और मे बी जस्ट सिंपल डिसीजन अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कुछ चीजों की अथॉरिटी है कि विदाउट ब्रिंगिंग दैट टू द पार्लियामेंट यू कैन enforce it or you can come up with that। तो ऑर्डर, ठीक है, और अगर मान लो कि something government wants to do which is not already mentioned or not in under their capability to execute due to the constitutional uh, constraints, तो उस केस में they will have to come up with an bill और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस। सो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स जो है और मे बी प्रॉब्ली गवर्नमेंट में have a stance of no response, that is also a policy। No response, no structured response, just be silent over it। So all these things may be considered as response or also considered as policy। ठीक है, ऑल्दो जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है तभी पॉलिसी है, या एक पॉलिसी है तो उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर स्कीम्स हैं, है ना, तो वो पॉलिसी है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक सिंपल लॉ जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि नो स्मोकिंग इन प्राइवेट प्लेसेस, तो फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ और पर्टिकुलर लॉ दे डोंट हैव टू go for parliament or whatever the स्टेट हाउस जो एमएलए के हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां जाने की जरूरत नहीं है टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द हाउस। दे मे हैव सच काइंड ऑफ law or order, but see, when Bihar government came up with alcohol ban, this was a big step, so they needed to get it passed from house। So something some decision which are more impactful, or maybe it may be the reason of loss for many other people, like when government bans the alcohol in Bihar, banned the alcohol in Bihar, many people got unemployed because all the liquor shop, all the supply chain, or all the people who were working on the supply chain got unemployed all of a sudden। So for those kind of decision, you have to uh, get it passed through the house, and probably you also need to make some arrangement for all those people who are in disadvantageous group, or maybe they are not, they are getting adverse effect, और उसको क्या बोलते हैं, अच्छा वर्ड क्या होता है, कैजुअलिटीज नहीं, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज इज द वर्ड, कि जो उसके नुकसान होते हैं। अंशिता एक्सटर्नलिटी बोलते हैं ना? यस सर। हाँ, तो एक्सटर्नलिटीज को भी ध्यान में रखें। तो मे बी मेरा यहाँ सिर्फ पॉइंट है कि जो रिस्पॉन्स है दिस कैन बी in any format, and all these formats together or not together, मतलब they may be called policies। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? अब let's stop for a bit again। Yes, sir.
So now we all know that what is public policy. ठीक है. Somehow I don't trust in defining public policy or any such term in accurate sentence or accurate words, but I keep it open so that you can accommodate other things to it. But more or less, we do have a structure that okay. So one more thing that is to be that we need to add here is that response and the problems or whatever, there is in between thing which is called goals. So in definition, you should also mention that anything that we do purposefully to achieve, है ना? तो जो आपके प्रॉब्लम सिचुएशन या जो भी कंसर्न है गवर्नमेंट का, for that they create goal, and to achieve that goal they decide what kind of response they need, है ना? तो ये this is also a very important part for uh, your important part of your definition. So I'll be explaining little about what goal, why the goal word is important here. So in management or in general understanding, uh, policy is basically a strategy plus goal. Now, if you will go into management sciences, ठीक है? If you'll go into management sciences, so earlier, even in our management science or MBA program, there used to be a paper called business policy. Business policy, है ना? And something like this only, मतलब business policy and corporate governance or such kind of paper used to be there. But अभी जो recent times में जो लोग भी MBA कर रहे हैं, they don't have this paper. Rather they have strategic management. है ना सुस्तिका? यस सर, स्ट्रैटेजिक तो मैनेजमेंट बोलते हैं। हाँ, तो why this change came? Why we shifted? Why we still not learning this business policy paper? Why we have shifted to strategic management? तो पहले हम कॉर्पोरेट के सेंस में हम बात करेंगे, एंड द मोमेंट you will understand that why corporate has changed to strategic management, you will know कि why government or why public policy could not be changed into public strategic management, है ना? और strategic management in policy or sorry public strategic management वो चेंज क्यों नहीं हुआ? तो पहले कॉर्पोरेट की नीड को हम समझें. तो सबसे पहले जो है, कॉर्पोरेट हैज अ वर्च्यू और समथिंग, मतलब दे हैव द एडवांटेज ऑफ flexible structure. They have got this advantage these days. Flexible structure. पहले देखे होंगे कि कॉर्पोरेट में भी ब्यूरोक्रेटिक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी. ब्यूरोक्रेटिक का स्पेलिंग अगर हम गलती लिखे तो माफ कर देना. तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी. तो उस टाइम पे बिजनेस पॉलिसी वाज फाइन, बिकॉज आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी जो आप गोल बना रहे हो, आप ये ध्यान में रख के बनाओगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसको टैकल कर पाएगी कि नहीं. और ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, नाउ organization can have a different structure, or they don't have lot of other constraints, जैसे constitutional compliances हो गया, या legal, मतलब legal of course you have to follow the nation's legal framework, but in house ऐसा कुछ नहीं है. They can change, मतलब they are very organic in this way. They can change organizational structure with respect to what goals they are creating. तो इसलिए अब जो कॉर्पोरेट को ये इंडिपेंडेंस है कि दे कैन थिंक अबाउट गोल एंड स्ट्रेटजी सेपरेटली. सो क्या होता है अब कि एप्पल और बड़ी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन क्रिएट अ गोल फर्स्ट, कि पहले गोल बनाएंगे, दिस विदाउट थिंकिंग that whether what kind of organizational structure they have, what kind of resource they have, what kind of constraint they may have, because they know all that those things are in their control. तो सीधे सीधे गोल पे बात करते हैं. And since the environment is very dynamic,
So the goal may change very often. तो इस डायनामिसिटी को ध्यान में रखते हुए they kept a separate thing goal or strategy as a separate thing, because they know that they have full control on it. Whatever the goal they will create, they may have a strategy for that. They may restructure their organization, they may restructure their financial decisions, they may restructure anything in order to achieve that goal. So goal is not a very important part for them. Of course, that is also very important part, that what goal they need to keep, that's a different thing. But they will not constrain themselves with their organizational structure or resources or other structural जो impedance है जो गवर्नमेंट में अभी भी है बट उनके यहाँ नहीं है. तो that's why implementation part or strategic formulation part is very important. That's why they have shifted their priority to a strategic management process, because they know whatever the goal is, if we have a good strategic management process in-house, we will be able to achieve the goal. But in case of government, you know, we are very bureaucratic. एक तो मतलब बहुत rigid infrastructure है. We have well established our executive body, है ना. जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, फिर हर ब्लॉक में आपके बीडीओज होते हैं, देन ये एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर एजुकेशन के स्कूल्स होते हैं, फिर पोस्ट होते हैं. तो ये सब आपके समझो कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू विच दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसी. तो अब होता है क्या है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड सम उनकी वर्किंग मेथोडोलॉजीज. इट इज नॉट चेंजेबल एवरी टाइम. इट्स नॉट जिसको आप मोमेंट टू मोमेंट और पॉलिसी टू पॉलिसी, नॉट पॉलिसी, गोल टू गोल आप उसको चेंज कर पाओ. तो ऑल दोज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो गवर्नमेंट के गवर्नेंस के पार्ट है ना. जस्ट अ सेकेंड, लोग थोड़ा ठीक है. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट जो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, ये सब वर्ड याद रखना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है. जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वो होते हैं जिसके जिसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का दावेदार होता है. तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो पोस्ट, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इंडियन पोस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है. या फिर पुलिस बॉडी भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कुछ हो तो, है ना. तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होती है वो हमारी बहुत बड़ी है, मतलब इट्स टू बिग टू कम अप विथ चेंज रेगुलरली. तो एक तो ये हमारे पास कंस्ट्रेन है, वी कैन नॉट इरेडिकेट दैट कंस्ट्रेन. और हमारी सिस्टम की कैपेबिलिटी है, जैसे मान लो कि हम कोई एक पॉलिसी लाना चाहते हैं एंड लेट्स से इट नीड्स 100 पीपल, बट हमारे पास है 40 वाले, तो वी कैन नॉट ब्रिंग दैट पॉलिसी, और वो 40 भी किसी और पॉलिसी में भी इंगेज है. या फिर हमारी पॉलिसी को कुछ आईटी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, and we don't have that kind of infrastructure in our implementing agencies. Or maybe a policy needs some subject matter expertise, तो हमारे पास नहीं है. गवर्नमेंट इसकी सॉल्यूशन, जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके सॉल्यूशंस भी करती है बाय अटैचिंग प्राइवेट पार्टीज टू इट, है ना. ये प्राइवेट प्लेयर्स को अटैच करके, जैसे केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर करती है. बट हम एक इन जनरल प्रॉब्लम बता रहे हैं तुम्हें कि ये जो इशू है कि हम गोल को बना नहीं सकते विदाउट नोइंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि अभी मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे आप बाहर पढ़ने जाते हो, जैसे बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं पॉलिसी, है ना, हार्वर्ड में या फिर स्टैनफोर्ड में कहीं पे, तो वहां पे तो पॉलिसी बिल्कुल ऑब्सोल्यूट सेंस में पढ़ाया जा रहा है कि व्हाट इज बेस्ट. ठीक है. ऑल्सो दे ऑल्सो टॉक अबाउट द लिमिटेशन. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बात करते, बट दे कैन नॉट get all the details about the governance structure of every nation, but they can always know that what is happening in, and वो पूरे region को एक साथ लेते हैं. जैसे for a person who is sitting or studying policy in Harvard, maybe they are taking the entire South Asia together for a particular issue कि South Asian country में ऐसा होता है. But you know that even in India different region have got different kind of
social structure or cultural practices and many other things which may impact the policy goals. तो point मेरा ये है कि यहाँ पे जो है कि ऑब्सोल्यूट सेंस में वो बात करते हैं, बट इन इंडिया जब हम वो पढ़ने जाएंगे या जब हम पॉलिसी बनाएंगे पॉलिसी फॉर्मेशन में, तो वी कैन नॉट टॉक इन दैट वे. हमें अपने गोल्स को कस्टमाइज करना पड़ता है, या टोन डाउन करना पड़ता है. उसको ऐसे समझो कि मतलब राइट वर्ड शुड बी टोन डाउन और नॉट टोन डाउन, कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, नॉट ओनली कस्टमाइज बट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हम अपने गोल मेकिंग में. तो गोल मेकिंग प्रोसेस जो है, इट डिपेंड्स compromise, it depends that what kind of structural structure of governance, or here in case we can tell that implementing agency we have. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस दैट वी हैव और कैपेबिलिटी, स्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी, ये सब वर्ड है जो तुम अगर बोलोगे तो और लिखोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, और आगे तुम्हें अच्छे से समझ भी आएगा. तो हुआ क्या यहाँ पे, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन, दैट कि जब हम अपने यहाँ पे यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करते हैं, दूसरा ये भी कि गोल नॉट ओनली स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी, आल्सो द लीगल लिमिटेशंस, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, और नॉट ओनली दिस कॉन्स्टिट्यूशनल. देखो हम कितने सारे बोलने के बाद भी वी आर एडिंग, कीप ऑन एडिंग डिफरेंट वेरिएबल्स व्हिच मे इंपैक्ट. अच्छा, लीगल. दूसरा, अदर पार्टी के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है. मतलब अदर पार्टी का स्ट्रेंथ, मतलब अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ जो जिसके फेवर में दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, और जिसके फेवर मतलब जिसके अगेंस्ट दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एंड दे हैव गॉट ग्रेटर स्ट्रेंथ, तो आपको वहां पे भी हार मानना पड़ता है. ठीक है, एक एग्जांपल वो था ना कि जो एक केस से जो मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज थी, सी वोन द केस, बट गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय ब्रिंगिंग अ लॉ और पॉलिसी, because the other party was very strong and may have impact or could have impacted the government. तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है. अब वहां पे क्या है कि कभी हम, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पॉलिटिकल, लोग भी है ना. अब एक गांव के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हो, दूसरे गांव को उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो दे कैन कम अगेंस्ट दैट. तो इन सब चीजों को, जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं, उसको देखते हुए यू हैव टू मेक योर गोल, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल केप्ट द गवर्नमेंट बेस्ड पब्लिक पॉलिसी को अभी भी हम पॉलिसी स्टडी की तरह ट्रीट करते हैं. वी डोंट ट्रीट इट एज स्ट्रेटजिक पॉलिसी और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेस्ड पॉलिसी. तो आपको अभी जब पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली क्या हुआ कि जो हम डिफिनेशन में ये बोलना चाह रहे थे कि वी हैव टू मेक आवर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन आवर गोल्स, है ना. दिस वी थिंक टुगेदर, मतलब एक ही साथ में सोचना पड़ता है, नॉट लाइक कॉर्पोरेट जहां हम गोल्स पहले सोच लेते हैं, व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टू डू एंड हाउ विल बी डूइंग, ये हम बाद में बात करेंगे. बट यहाँ पे क्या है, हमें दोनों को एक साथ टुगेदर, है ना, और उसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट के साथ, है ना, वी नीड टू कीप अलाइंड. तो वैसे आपको सोचना पड़ता है. सो नाउ यू नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको इसका कोई कभी पूछे जवाब कि व्हाई पब्लिक पॉलिसी इज स्टिल अ पब्लिक पॉलिसी, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, तो आप बता पाओगे? बोलो. तो अभी हमें पता चला कि सारी चीजें जो है, एवरीथिंग, if you talk about public policy and government response, it depends upon what kind of government is and what is the structure of governance. So the first need and the first thing that you must know is कि what is the governance structure that India has. तो इसके key points हैं कि जैसे इंडिया एक फेडरल सिस्टम है,
So we do have central government, and we have different state governments, and we also have the third tier of our democracy, or वो which is called स्टेट के अंदर में जो लोकल गवर्नेंस की बॉडीज होती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 लेयर्स हो गए। उसके बाद सेंटर के अलग डोमेन होते हैं कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज होती हैं जो उस पर्टिकुलर डोमेन के एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होता है, तो मिनिस्ट्रीज हो गई। फिर स्टेट के साथ भी मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है, स्टेट के साथ भी मिनिस्ट्रीज हो गई। फिर उसके बाद आपको इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ कमीशन्ड होते हैं, कुछ नॉन कमीशन्ड होते हैं, ठीक है। कमीशन्ड होते हैं, कुछ नॉन कमीशन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी भी बॉडीज होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज जैसे जनरली कमीशन्ड होती हैं। तो ऐसे एक एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, है ना। कुछ चीजें जैसे मान लो कि जैसे पोस्ट है, रेलवे है, वो मिनिस्ट्रीज में ही हम काउंट कर लेते हैं, बट वी हैव मतलब वी हैव मेनी बॉडीज व्हिच इज वर्किंग एज एन गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। तो तो वो सारे स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हुज रोल इज व्हाट इन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। फिर आपको इसमें ये भी बताया जाएगा या पढ़ना पड़ता है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट कंसर्न टू विच बॉडीज। तो हम इसको 3 मेजर पार्ट में बांटते हैं कि सेंट्रल लिस्ट होती है हमारी, फिर स्टेट लिस्ट होती है, और फिर तीसरा क्या होता है, concurrent list. कनकरेंट लिस्ट होता है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसमें अभी इंडियन पॉलिटी की आपकी क्लास होगी, है ना। प्रताप सर विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी क्लास, सो यू विल बी नोइंग बोथ थिंग। जैसे वहां पे, जैसे ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, बट फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ना होता है कि हाउ पीपल आर बीइंग सिलेक्टेड, है ना। और फॉर्मेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर, ये दोनों चीजें आपको पढ़ना समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्ली ये पॉलिटिकल पॉलिटी की बात ही करेंगे, बट जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको पॉलिसी के साथ ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिर बात आती है कि पॉलिसी को हाउ डू वी विजुलाइज पॉलिसी। जैसे हम लोग पॉलिसी का नाम आता है ना, कि जैसे कई बार बच्चों को बोला जाता है कि कोई एक पॉलिसी बताओ, तो दे विल टेल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दे विल टेल हेल्थ पॉलिसी, दे विल टेल मनरेगा, दे विल टेल जनधन योजना। तो जनरली हमारे दिमाग में ना बहुत बड़ी जो नेशनल लेवल के पॉलिसीज होते हैं ना, वही दिमाग में आता है। वी डोंट टॉक अबाउट ऑड इवन पॉलिसी और लिकर पॉलिसी ऑफ ए स्टेट, और प्रॉब्ली policy related to small child, policy related to young adults, policy related to pregnant women. So there are many small big policies which are there. तो उसको हम पहले ब्रॉड डोमेन, ब्रॉड गोल वाली पॉलिसी होती है, फिर उसके बाद नैरो गोल वाली पॉलिसी होती है, ठीक है। इस तरह से कैटेगराइज करना चाहेंगे, है ना, इन फर्दर क्लासेस। सो नैरो गोल वाली पॉलिसीज होती हैं। फिर उसमें आ गया कि कोई कोई तो होता है कि जिसमें मान लो कि रेकरिंग पॉलिसी है, या जो वो चलता ही जा रहा है, मतलब वंस इम्प्लीमेंटेड इट वोंट बी स्टॉप। कुछ टाइम बाउंड पॉलिसीज होती हैं कि सर्टेन टाइम के लिए उसको लाया गया, ठीक है। कुछ क्रॉस डिपार्टमेंटल पॉलिसीज होती हैं। तो ऐसे करके पॉलिसी के डिफरेंट कैटेगराइजेशन ये आगे वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस पे बात होगी। फिर उसके बाद जो मैं नॉलेज ट्री बनाना चाह रहा हूँ अब, कि पॉलिसी अगर अब कोई बन रहा है तो फेजेस ऑफ पॉलिसी क्या है। तो इस पे छोटा सा बात कर लेते हैं। जैसे फेजेस ऑफ पॉलिसीज में सबसे पहले हम इसको एजेंडा सेटिंग बोलते हैं, है ना। कि किसके बारे में बात करनी है, एजेंडा क्या होना चाहिए, फिर क्या। इसमें अब यही दिक्कत है, देखो यहाँ जैसे हमने एजेंडा सेटिंग बोल दिया, तो ये दोनों चीजों को टैकल कर रहा है कि किसके बारे में बात करनी है, क्या गोल होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट व्हाट वी कैन डू, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, ड्राफ्टिंग, ठीक है। फॉर्मुलेशन हो गया जिसमें हम
इस पे बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि कौन फॉर्मुलेट करेगा, क्या उसके फीचर होने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हम क्या डिसाइड करते हैं, आर वी एबल टू इनोवेट। अब अभी जो करंट प्रैक्टिस है ना, उसको साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज से 2 गवर्नमेंट पहले है ना, बिफोर 2014 और बिफोर दैट, हम लोग जब भी पॉलिसी बनाते थे तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्सिबल होती थी उसको इम्प्लीमेंटेशन में, बाय टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते थे बीच बीचों में कि इसके लिए हम कैपेबल नहीं है तो आप इसको कर दो टेंडर दे के, ठीक है। अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट पॉलिसी। और वो जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा एक पर्टिकुलर पॉलिसी का, विच वाज नॉट वेरी मच पॉसिबल टू क्रिएट बिफोर, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, बट द करंट गवर्नमेंट हैज बीन इनोवेटिव इन दिस वे। जैसे मान लो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है या पॉलिसी है, तो दे हैव क्रिएटेड अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ तो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी से होंगे, कुछ प्राइवेट प्लेयर से होंगे, और दोनों को मिला के एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार की जाएगी। दे विल बी वर्किंग ऑन। तो ये यहाँ से भी लेते हैं इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी लेते हैं, बट ओवरऑल द गोल विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द न्यू प्रैक्टिस दैट वी आर फॉलोइंग। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद जो प्रोसेस होता है एडॉप्शन का, जिसमें हम उसको लीगलाइज करते हैं, एंड व्हाट आर द नीड एंड क्राइटेरिया फॉर लीगलाइजेशन, ये हम इस पे पढ़ेंगे। एंड देन वी इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, जो होना चाहिए, विच इज नॉट देयर इन इंडियन कंटेक्स्ट वेरी ऑफन, जो रेगुलर और एक होता है ना कंटिन्यूअस रिव्यू करना, या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करना, विच इज नॉट देयर इन इंडिया एट ऑल। खासकर जैसे कोई भी पॉलिसी है उसके आउटकम को एक्सटर्नल एजेंसी से रिव्यू कराना, ये इंडियन गवर्नमेंट में है नहीं, बिकॉज largely the bureaucrats which are involved in policy making, they won't like to get assessed by external agencies। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फेजेस ऑफ पॉलिसीज हो गया। एंड यू कैन कम अप विथ, यू कैन टेक एनी एग्जांपल्स हियर। जैसे मान लो कि एजेंडा सेटिंग की बात करेंगे, तो हमें भी तुम्हें बताएंगे या क्लास में वी विल ट्राई टू डिस्कस कि हाउ अ पर्टिकुलर केस, जैसे हु आर द पीपल हु इन्फ्लुएंस द एजेंडा। तो सिविल सोसाइटी है या जनरल पब्लिक है ना, या वो मीडिया है, ये सब लोग जो है एजेंडा सेटिंग में हाउ दे बिकम अ वेरी इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट फॉर दैट। तो कभी कभी एक केस होता है, जैसे मान लो कि 1992 में एक मेरठ की लड़की ने केस किया था कर्नाटक गवर्नमेंट को, एंड दैट केस वाज एक्चुअली फाउंड बिकम द फाउंडेशन फॉर आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए। सिमिलरली स्मॉलर इवेंट्स कैन ग्रो इन बिग वे टू टू बिकम द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। तो जैसे मान लो कि एजेंडा में भी क्या है कि कुछ तो प्रिवेंटिव होता है कि अभी कुछ हो रहा है उसके लिए पॉलिसी बनाना है ना। कभी ब्रेकडाउन बेस्ड हुआ कि कुछ हो गया, जैसे मान लो कि बाढ़ आ गया तो उसको लेकर आपको पॉलिसी बनाने हैं, ठीक है। और कभी कभी गवर्नमेंट में भी वेरी प्रोएक्टिव टुवर्ड्स अपकमिंग डिजास्टर और एनीथिंग, तो उसके लिए पॉलिसी बनाती है ना। फिर पॉलिटिकल थोड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट सेल्फ अवेयर्ड है फॉर देयर वर्क, बट देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर बीइंग और विच आर बीइंग ब्रॉट टू द गवर्नमेंट्स माइंड कि ये आपको टैकल करना जरूरी है, बिकॉज द सिविल सोसाइटी और डिफरेंट पीपल, NGOs and other things, they start creating demand for it। तो इस वजह से अब कई बार जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो दूसरे लीगल बॉडी हैं, दे कैन ब्रिंग द सब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, we'll have a very separate lecture for that। And then after phases and learning the structure, ठीक है, government structure और phases of public policy, then we will talk about all those issues which are in discussion these days, and for which we are still not able to found a very concrete policy steps or structure।
जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या फिर लोकपाल बिल हो गया, या वो राइट टू रिकॉल, ऐसे कुछ कुछ इश्यूज हैं जो अचानक से कभी कभी आ जाते हैं। जैसे मान लो कि अ, यहाँ पे ही एजेंडा सेटिंग में भी एक ये भी बात है कि अ, जैसे सिविल सोसाइटी या डिफरेंट एनजीओ किस टाइम में किस प्रोटेस्ट को लेकर आते हैं, कितना रिलेवेंट है, उसके हिसाब से भी वो होता है, एजेंडा क्रिएट होता है। अच्छा, जैसे फॉरेन पॉलिसीज के एजेंडाज हैं, तो कई बार आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाहर की एक्टिविटी, बाहर के जो इवेंट्स होते हैं, दे फोर्स यू टू चेंज योर पॉलिसी और वर्क ऑन योर पॉलिसी। जैसे अभी यूएस का टैरिफ है, सो वी हैड टू चेंज आवर पॉलिसी विथ चाइना, है ना। तो अब नॉट एवरीथिंग वी नो कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, बट वी कैन ऑलवेज टेल दैट इन व्हाट डायरेक्शन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। तो ऐसे सब इश्यूज पे जो ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं, एंड समटाइम्स women related issues जैसे फेमिनिज्म है, तो we still not are able to come up with the right definition of equality of women, है ना। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हमें डिस्कस करना होगा, विच इज अ वेरी पोटेंशियल सब्जेक्ट फॉर द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक, नॉट बेसिक, ये स्ट्रक्चर हो गया in what way we are going or we will be going ahead in terms of our preparation। कुछ चीजें आपको जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है वो आपको जीके की क्लास में कवर की जाएगी, एंड रिसर्च के लिए विल हैव रिसर्च, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च और व्हाटएवर द टॉपिक्स आई रोट हियर, इसके लिए हम लोग थोड़ा अलग से क्लासेस भी रखेंगे। एंड ऑल द पब्लिक पॉलिसी पीपल आर, मतलब जो मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन दिस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्लास फॉर पब्लिक पॉलिसी।